So yo, hello and Kasaka, this is Disham Team. Welcome back to the podcast. Thank you for everything that you guys do. Thank you for the response जो तुम लोग दे रहे हो हम लोग को. We are very impressed and like बोलते हैं ना, I have to take over right now. मैं overwhelmed हो गया था थोड़ा. Vicks की गोली. Because क्या ही बोले अभी like but yeah, support जो आ रहा है यार, मजा आ रहा है. Every time we say this, but like really crazy. Thank you for this. Today's episode is going to be a slight emotional, I think so, and a motivative episode. And it is very special for us. As we say, every episode is special, but this is way above special because ये कैसे मालूम है एक side female empowerment को देने के लिए है. And this episode is Women's Day special episode. So we are recording with our homie, Rakshanda. Hi. Rakshanda is basically impact manager in Radio Mirchi, and she used to handle celebrities from long period of time जब संस्कार पैदा भी नहीं हुआ था. Probably एक दिन मैं तुम लोगों को हैंडल करूंगी, so you never know. Nice. Yeah. I like that. But yeah, how are you feeling here today? Because of like you found this place easily, or like you had to search or like. No, actually, I found it very easily, but me being dumb, I went straight walking to the building number 1 and 2, and it's cool. But ठीक है, it was fine. Like both, actually, I just wanted to. Both the buildings are confusion हो जाता है. But like Yeah, but it was easy to find it, huh? Say. So let's get into the story directly. Okay. We want to know what made you like come out so easily. Like it's कैसे तेरे में हिम्मत जम गया कि because you're a girl. Guys can say things very easily, but girls are like it is like very hard for a girl. क्या बोलेगा, कैसे, क्या scene like. By the way, I like your eye makeup. Huh? Nice, thanks. That shimmer. Okay. So coming out was not easy, of course. I feel somewhere, we just have the thought process जहाँ पे we feel यार अगर मैं मेरे खुद के बारे में किसी को कुछ बोल लूँ तो वो जब turn out होगा that'll be very wrong. Probably there'll be 4 people pointing out at me. But somewhere I feel I came out after a year or so. I took some time. I tried digesting the fact that this all has happened to me. But once I made sure कि नहीं यार अब तो बोलना है. If there are people out there like me who are suffering, maybe I can be someone who's helping them. क्या पता यार. I mean, today when I even put a story up and they're like कि oh shit तेरे साथ ये हुआ था. I'm like हाँ bro ये हुआ था. बोलते dude speak more about it. We want to know. Like every stage we want to know. जब तू रोती थी, how did you calm down? When you had anxiety or panic attacks, how did you calm down? So what was the entire process? So I feel जितना मैं ये बारे में बोलती हूँ उसका reverse effect होता है. I feel more powerful about it. So I guess I have made my mind in that way कि I speak about it and I get more powerful. I feel more power about it. Yeah. But कई जाके it is better for a victim to speak up instead of a psychologist or someone who is treating, because उनका point of view जब मिलता है ना तो it is something like strengthening, reverse strengthening बोल सकते हैं हम लोग कि कई जाके एक victim दूसरे victim होने से बचा रहा है कि someone is saving someone from something bad. Basically दूसरे को खड्डे में से गिरने से बचा रहा है. He is there to correct me every time. But yeah, so if something is gonna happen, we know कि इसका impact ये हो सकता है और ये reply हो सकता है या फिर answer हो सकता है. So you can always guide a person very clearly. If you have gone, it is like being Krishna to that mark. Yeah, knowing, experiencing and talking about things. So hello. Yeah. आ रहा है. हैदर भाई टेंशन मत लो, हमारा ऑडियो अच्छे से आ रहा है. Yeah. So that's I think so that is nice. So where did it started and what was the first thing that you faced? I like to know from the start. Okay. So I was in 7th standard. ठीक है. Just normal school girl day. मतलब school से जाओ घर से, and very studious girl. Which school? Sacred Heart School. That's in Kalyan. Hey bro. अब कल्याण वाला. चलेगा. काका मामा जी बोला.
So yes, I was a studious girl, but बैक बेंचर. मैं वो फर्स्ट बेंचर वाली स्टूडियस नहीं थी कि मैम 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 मैम, मैं पीछे से थोड़ा सा. But हाँ, I was a good studious person. Always involved in a lot of extracurricular activities. Always very jolly, happy, and everything nice. So one day I returned back from school. मैं घर जाती हूँ and I sleep. मेरी नानी मुझे बोलती है, सुन, you want to have खीर? And like, why not? और मैं फिर मेरे को नानी बोलती है, ठीक है तू जा, तू खीर के लिए दूध लेके आ. मैंने बोला कूल. तो मैं नीचे जाती हूँ दूध लेने के लिए. सो द बिल्डिंग वेयर आई यूज्ड टू स्टे बिफोर, उसके ऊपर ही ना हम लोग के पास एक पर्सन था हु यूज्ड टू गिव अस मिल्क एंड एवरीथिंग. उसका खुद का एक स्टोर था, किराना का दुकान था. तो मेरी नानी ने मेरे को क्लियर एडवाइस दिया था कि तू ऊपर जा, तू दूध लेके नीचे उतर जाना. बट मैं नहीं ना, तब हमें अच्छा लगता था जैसे बाहर जाओ, फुल घूम घूम के आओ हर जगह पे. आई वेंट आउट टू बाय मिल्क एंड आई बॉट इट. एंड मैं मेरे फ्रेंड को मिलने के लिए ना दूसरे बिल्डिंग में जा रही थी कि मैं उसको हाई बोल के मैं वापस से घर चली जाऊंगी. सो दिस गाय, young, I say around he'll be 24 or 23, something like that. He comes and he's like, बेटा आप मुझे हेल्प करोगे क्या लिफ्ट खोलने में? I was like, लिफ्ट खोलना क्यों नहीं आ रहा है आपको? और एकदम ऐसे मतलब लिफ्ट खोलना क्यों नहीं आ रहा है आपको? ऐसा भी नहीं था कि इट वॉज एन ऑटोमेटिक डोर और समथिंग लाइक दैट कि उसको समझ नहीं रहा है. एंड मैंने बोला ठीक है मैं आपको खोल के देती हूँ. मैं खोल के दिया एंड ही इज लाइक, आप अंदर भी आओगे क्या मेरे साथ? मैंने बोला क्यों? तो बोलते नहीं मुझे ना 6th फ्लोर पे जाना है, यहाँ पे वो रहते हैं तो मुझे उनसे मिलना है. एंड ही मेंशन नेम एंड नेम ऑफ अ पर्सन who is very close in connection with my family. I was like यार इनके घर पे जाना है तो ये तो मेरे ही घर है, तो I'll drop him. तो I was like ठीक है चलो. I close the lift, I press the buttons and he's standing right behind me. And मैं उसके आगे हूँ, ठीक है. And I'm wearing this cute short frock with 2 ponytails, ठीक है. And first floor गया, second floor गया. The lift is very slow now, ठीक है, क्योंकि पहले के buildings अपने वैसे ही होते थे ना, धीरे धीरे धीरे. So he starts touching me here and there. And I was like ठीक है, मतलब गलती से शायद हाथ लग रहा होगा. I did not understand at that moment because school में ना जब सिखाते हैं तब ये नहीं सिखाते what is a good touch and what is a bad touch, which is very important. जो अभी recently start हुआ, and I'm very glad that it has been started, that people are teaching kids right from senior KG के what is a good touch and what is a bad touch. So I was like ठीक है, maybe this just happened. I was fine till I crossed the 3rd floor, 4th floor. 4th floor आता है, this man starts rubbing himself on me. And still I'm quiet, I'm shivering, I'm not saying a word. I'm like, ठीक है, I'm still shivering like. I was like, ठीक है, ये क्या हो रहा है? फिर भी I'm trying to analyze कि okay. एक point ऐसा आया ना, he got aggressive. And I was like, नहीं ये गलत है. I started screaming, बचाओ. Till I actually reached 6th floor. My friend's dad came out and he was like, क्या हुआ? मैंने बोला, this guy, no, he's touching me in a very inappropriate manner. I don't know what is he doing, but he's doing something to me. He's like, नहीं, ये कुछ भी बोल रही है, छोटी बच्ची है, कुछ भी बोल रही है, आप इस पे क्या भरोसा कर रहे हो? मैं ऐसे ही देख रही हूँ, मैं ना साइड में जाके रोने लग गई. मैंने कुछ नहीं किया वो मोमेंट पे. My dad's friend brought him out and he started hitting him because he understood कि यहाँ पे ना कुछ तो प्रॉब्लम है. तू कहाँ से आया? तू किधर का है? तू हमारे बिल्डिंग का नहीं है. और तभी क्या ना वॉचमैन इतने सीरियस नहीं होते थे कि वी टेक एंट्रीज एंड ऑल. कोई तो गांव से भलता सा बंदा आया था. He just wanted to fucking rape someone and he came in. But thank God कि my friend's dad came out, he took him out. मेरा पूरा फैमिली नीचे आया and trust me, वो बिल्डिंग के वही सारे gentlemen थे who were hitting him and they took him to the police station. The entire case was filed. The case was filed for a reason because my dad is not someone who would have taken this very lightly कि नहीं ठीक है चल मेरी बच्ची ठीक है ना. We filed a case. I'm kidding you not 2019 में वो case closed हुआ है. When I decided I wanted to fly to Boston for my studies, तब तक वो केस चल ही रहा था. This person used to haunt me, like legitimately haunt me. वो मेरे स्कूल के गेट के बाहर आके खड़ा रहता था
And while I'm traveling through the bus or I'm seeing him even after the incident, I used to shiver. My friends, यार वो टाइम पे बच्चे हैं, कौन किसको समझेगा कि एंजाइटी क्या होता है, पैनिक अटैक्स क्या होता है. I used to just lock up myself in the bedroom and I used to be like ठीक है मेरे को, I didn't allow myself to touch anyone. मतलब कोई मुझे नहीं छुएगा, even it's my mom, dad or be it anyone. I did not allow anyone to touch me. I had my first hearing in 10th standard. Because उसके पहले you don't really have that courage to go in the courtroom, stand in front of a lot of people. 10th standard में I went in. This happened right before our board exams. I remember March में exams थे, and this happened somewhere around in Feb. And it was a on-camera rolling situation happening over there. They closed the entire room. There are people sitting. There's my parents. There are my parents. There's his family. Now 2 people are standing, one in support of him. पहली बात तो मैं यही सोच रही थी ये लॉयर किस बात का सपोर्ट करने वाला है. And the second lawyer who was standing for me, this lawyer says few things कि नहीं वो mental issue है, ये है वो है, and you are hearing this out. 10th standard में फिर भी यार मुझे नहीं लगता people grow up so fast to understand what is happening. My lawyer stands up and he says ये बंदे की सगी बहन ने सुसाइड किया है. रीजन, इसने अपनी बहन का रेप किया. Oh fuck. यस, इसकी बहन का इसने रेप किया तो वो बहन ने अपने आप को फैन से लटकाया एंड शी किल्ड हरसेल्फ बिकॉज शी कुड नॉट स्पीक दिस इन फ्रंट ऑफ हर पेरेंट्स, सेइंग कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा बेटा है, लड़का है हमारा, वो कैसे करेगा ये. एंड आई एम हियरिंग दिस, इमेजिन. Now this guy was called उनके कटघरे में and he was asked कि तू करने क्या आया था, तुझे करना क्या था. Audacity of this man to look me in my eye and say कुछ नहीं, मैं इसका रेप करता था, मैं इसको 7th floor से फेंक देता था. Was he psychotic? Yes, he was. Later on we come to know that he has some issues, he has some psychological issues जहाँ पे he needs younger girls to fuck with. So he goes out and he randomly goes into some kind of a building and finds such girls and he rapes them and he kills them. Later on they dug this entire thing. They came to know that there are 10 such girls who have died. So he was a serial rapist. Yes. And this thing was in a newspaper too. Bro, this is trauma by trauma. This is sensational, bro. This is sensational. And I was like, I'm hearing this, I'm still trying to process कि यार मैं मर सकती थी वो दिन. Probably मैं जिंदा नहीं होती थी यार. Your bhagya is really, really good. Yeah. You have a hand of God. That's why you're here. Okay. I was still okay. ठीक है, मैंने बोला तू बोल रहा है, तू बोल ले. मैं वो सब एब्जॉर्ब किया. उसके बाद मेरे बोर्ड्स थे तो वी डिड नॉट गो ऑन द केस एंड माई पेरेंट्स एक्चुअली ट्राइड कि हमारी बेटी अभी कॉलेज में जाएगी यार, वी कैन नॉट पुट हर थ्रू दिस, तो उसके जितने भी हियरिंग्स होंगे वील गो देयर, वील टॉक एंड वील डू हाउ मच एवर वी कैन. अब आता है 2019 वेयर now I'm supposed to end the case because I want to fly to Boston and it won't be possible अब कि ये केस यहाँ पे इंडिया में चलता रहे because मुझे पता है मेरे वीज़ा में इश्यूज आ सकता है. विक्टिम हूँ बट इश्यूज आ सकता है. दिस गाय कम्स टू मी अगेन. इतनी ऑडेसिटी कहाँ से आती है? ये बंदा मेरे पास चल के आता है. ही इज वेल ड्रेस्ड अप नाउ. ओके, द पुलिस हैड मेड श्योर कि ही इज गोइंग थ्रू अ थेरेपी व्हाइल ही वाज विद देम. They made sure कि he's working on himself and he comes out and he's like कि प्लीज़ आप ऐसा कह दो ना कि आपके साथ मैंने कुछ नहीं किया था. मैंने बोला मैं ये नहीं कर सकती हूँ. मैं फिर भी उससे बात कर रही हूँ यार कि तूने मेरे साथ ये किया ना, ठीक है चलेगा, बट आई विल कीप एन ओपन हार्ट. आई विल बी लाइक हाँ तू बोल ले तेरे को जो बोलना है. और मैं उसको बोल रही हूँ नहीं यार मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं नहीं बोल सकती हूँ ये. माई डैड टुक मी अवे फ्रॉम हिम एंड हियरिंग चालू हुई. माई डैड इज लाइक, हियरिंग के पहले मेरे डैड मुझे समझा रहे थे कि सुन आशी, दिस इज द केस, आई अंडरस्टैंड, बट तुझे अभी निकलना है, यू नीड टू थिंक अबाउट इट, तो तू एक काम कर, यू जस्ट से नथिंग हैपेंड. आई वाज लाइक दिस इज गोइंग अगेंस्ट माई विल. I know things happen to me that still haunts me somewhere. I don't like people touching me now. So I cannot just say this. But of course, when you get that pressure
एंड यू फील कि नहीं यार अब तो करियर का सवाल है, नाउ आई नीड टू स्टॉप, बिकॉज ये केस का कोई एंड ही नहीं आ रहा है यार, वो बंदा सुधर के बाहर आ गया है अब. But like he had confessed, right? कि उसने टेप पे confess किया था, but वहाँ पे result क्यों नहीं दिया? Nothing, because thanks, that is what I'm saying. To soch na, I was in 7th standard. What would be that year? I mean, I'll say 2008 or something. 10 years. It took 10 years for these guys to close that case. 2019 मेरा last hearing था. I don't know what is wrong with Indian Right. government, but this happens a lot of time now. Like there is similar case with me. So one of my ex-girlfriends, I think so. So she was also assaulted by her cousin brother, and her parents were not believing it. Ki like hua hai. She calls me at night and she's like ye hua wo hua, and I'm like, where were you? I needed you. And I'm like, I'm shocked. This is the first time I'm facing something like this coming from a girl. So what should I say? So the first thing I did was like found her father's contact and tried to talk with him as calm as possible. I told him कि ये आप पहले जाओ उसके कजन के घर पे, उसको उठाओ और उसको लेके आओ, because she is in a situation where she can't do anything. She was like कि, and then she said कि ये first time नहीं हुआ है, ये मेरा दादाजी भी करता था मेरे साथ, and she was like properly raped like, and this time what happened was she was raped, but her psychologically there are so many issues in her head. She had to say कि मेरे को pregnant नहीं होता है, you use a condom, better it is. So she said it that way, so consent में चला गया. So they couldn't even fight a case. She was traumatized so much. इतनी trauma में चली गई थी वो कि she was not able to differentiate a man's touch. So every touch was sexual for her. Every touch was something, and she got into, as I said, being into a BDSM community. She got into CNC where she wanted that. CNC is basically consensual non-consensual sex, where she wanted someone to change that scenario with a role play. So that kind of misery she was facing, but she was not able to tell her psychologist or anything. And like, I don't know, I just had to tell her ki bro, you need a psychiatrist, and somewhere I had to leave. So I couldn't take it anymore, because like agar this goes on continuously, she is gonna go through something, and there are gonna be cheating Definitely. episodes and everything, because Definitely. she is not gonna be satisfied. Rape victims tend to get into sex, and I swear to God they get into sex looking at it at like different perspective, but it eats them up. It eats does. them up. Their touches are different. Their body language is different. They throw a different vibe. They throw everything differently. It is like really, like I know, right? I've seen it closely. I've made a girl understand, ki, look, bro, you're okay. You Mhm. need some time. You need some space. So that is how things should end. But I don't know why Indian government doesn't take step when the fucking criminal is accepting. Exactly, like he's in front of you. उसने बोल दिया तुम्हें कि मैंने रेप किया है, मतलब मैंने कोशिश की उसकी रेप करने की, ठीक है वो असॉल्ट था, तो तुम रेप किया तो नहीं है ना, ये तो नहीं बोल सकते. अल्टीमेट गोल वही था उसका. He wanted to kill you some point. Yeah, he just wanted to have his thing and he would have thrown me out from the building. 7th floor से तुम एक लड़की को फेंक रहे हो रेप करके. इसके बाद भी ना थिंग्स डोंट स्टॉप, यू नो. तुम तुम्हारे एक कॉर्नर में रहते हो, बट कहीं ना कहीं अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू कम इन. एक होते हैं जो कंसोलिंग होते हैं कि ओ बेटा ठीक है, अब तुम समझो, अब सब ठीक होगा, ठीक है. कंसोलिंग इज वन वे. सेकेंड ऐसे होते हैं रिलेटिव्स या जो आस पड़ोस में रहते हैं, हुआ लाइक तू छोटे कपड़े पहनती है ना इसलिए तो हुआ ये, तू ऐसे फ्रॉक पहन के घूमती है इसलिए मैं मना करती थी ना मत पहना कर. आई वाज लाइक मेरे कपड़ों में प्रॉब्लम नहीं था, उसकी सोच में प्रॉब्लम था. See, these people have no caste, no creed, no shame, Not at all. no humanity. They are just psychopaths who want to sexualize or like pleasurize their organs and feel that 30-second of dopamine burst. Absolutely. So वहाँ पे वो लोग गलत जाते हैं. And
This are not with rapist also. Rapist नहीं, बाकी के लोग भी है, fuck boys, fuck girls. इन लोग का भी रहता है. They just like nymphomaniacs. They are also people who just want happiness via sex, so they run here and there. Absolutely. Crazy, bro. I can't. I mean, now when I hear stories, अरे यार 2 महीने की बच्ची का रेप कैसे कर सकता है कोई? No. You. How do you do that? 2 महीने की बच्ची. Do you know this case had been highlighted on news? 2 I have महीने की seen, but बच्ची like- in Delhi. And दम किया था उसको. Yeah, how is any kind of a human safe? You fucking fuck a cow. Playing on religion or doing anything that sort of. How do you do that? Where is humanity these days? Where do you come from? घोर कलयुग से भी घोर कलयुग आ रहा है, bro. This is now we hear these stories ना, like ऐसे एक आते हैं, like कहाँ जा रहे हैं अब कहाँ जाएंगे? अब तो and this causes a series of trauma in your future life. हाँ. exactly PTSD तो होता ही है. माँ चुद जाती थी माँ की, वो अलग ही. वो But अलग ही है. that causes a kind of manifestation where similar kind of people keep coming back to you. So I think I've seen such episodes happen कि एक चीज से बाहर पड़े कि दूसरा वो सीरियल जैसे हो जाते हैं. एक चीज से बाहर आ गए कि दूसरा बैड थिंग आना ही है तुम लोग के पास. Exactly. तुम लोग कितना अच्छा सोचोगे, तुम लोग के पास ट्रॉमा हो गया, तुम लोग उठ के तो भगवान नहीं बन सकते ना यार कि हाँ मैं शुद्ध हो Never. गया. Shit. I mean, Crazy. I mean, I don't know if you guys have seen this news. The porn searches, the highest searches are gangbangs or women being raped. How to rape a woman? Have you seen this news? No. Please check it out. The highest searches of porn is how to rape a woman. Can you believe this? This, I think so, has corrupted a side of people. The porn is to be blamed here because educating people about sex. This episode can be too much about sex. Guys who don't want to talk about sex Yes, or think कि, like absolutely. we are talking ashleel, you can drop off because Yes, हम लोग को ये मुद्दा ये किससे तो बाहर आने चाहिए कहीं ना कहीं से. actually 98% of searches are forceful sex and like a power dominance play जहाँ पे consent नहीं होता है. होता. Consent is a good thing, guys. You should, Hmm. everyone who is watching my episode should know कि बहुत consent is very much of, you can say it's like your heartbeat. You remove it, Absolutely. you're just dead body. तुम लोग no समझो, no is no, no is fucking no. No के आगे कुछ नहीं होता. Even if it's your wife, your girlfriend, or anyone you are being authoritative on, कि हाँ मेरी तो शादी हो गई है भाई तू मेरे साथ Even a करेगी. No, prostitute, no. even a prostitute, Yes, you're exactly. paying to. She says no, that means no. No. Take the money back, fucking go. No होता है वो no होता है. yeah, like ये तो सेक्स का हो गया, but like normally if a girl says कि मेरे को तेरे से बात नहीं करना है, जैसे इंस्टाग्राम पे होता है, और like people don't understand there also कि नहीं बात करते रहेंगे, like बंदी ने बोल दिया है नहीं बात करना है मुझे तेरे से, तू चला जाना भी गायब हो जा, नहीं है वहाँ पे सीन, like नहीं They'll harass you. 10 बार हे हाय They'll harass you. ये हम लोग ने लास्ट टॉपिक में भी बोला था कि like हाय हाय और हाय. मैं एक देखता हूँ एक्सपीरियंस करता हूँ ना, वेयर माय फ्रेंड्स लाइक फीमेल फ्रेंड्स टेल की ऐसा सीन, लाइक यार इन लोग को बेसिक मैनर है, कंसेंट नहीं समझ में आ रहा है, सामने का बंदा बोल रहा है, पर्सन बोल रहा है कि नहीं बात करना है, चले जाओ. चाहे तुम लोग का काम धंधा. Hello, madam. Will you send me a picture? send noodles. There, I think so. सुबह ही मैंने पढ़ा था कहीं तो कि a guy was like sending a girl messages. So I think so. Facebook comment है ये मेरे किस्से केस में. So a guy, he was like कि mutual friends में था, अच्छे से बात कर रहा था 6-7 दिन, and 8th day comes and he's like send nudes. I'm like okay, like why? Fine. Consent तो छोड़ दो, like ये क्या मतलब क्या है ईगो तुम लोग का, क्या सोच रहे हो तुम लोग? You wanna win a girl over? There is a long process to win a girl A over. long, A lot. a lot. Like, Girls Yeah. submit.
आप कौन सी भी लड़की को जाके बोलो गर्ल्स विल सबमिट, बट यू हैव टू बी दैट गाय who Absolutely. praises her and who makes her feel home. Then न्यूड्स क्या वो तेरे घर पे आके तेरे को है ना पप्पी देगी. पागल कुछ भी करते हो तुम को आता नहीं है, तुम रेप कर रहे हो, ये कर रहे हो, पागल चुतिया लोग. अभी इसमें दो टाइप के लोग आएंगे. एक बोलेंगे हाँ वैलिडेट करेंगे ये चीज, दूसरे आएंगे यार हमारे साथ भी तो होता है, लड़कों के साथ भी होता है. लड़कों के साथ I am sorry. Okay, लड़कों का भी सीन हो गया था. A guy, when I used to go swimming, okay, I was around 11, 12 years old. I used to go swimming. I was changing. I came from swimming. I was changing. तो एक बुड्ढा आदमी है, 60, 65, 70 के आसपास. And he looked very familiar. So I was like, okay, काका कशे आहेत बरे आहेत ना. So I was wearing my track pants. I was in my undies. So he comes and touches my pee. He presses it. I push him. मैं गिर जाता, मैं ट्रैक पहन रहा है, मैं उसको मारूं या फिर मैं ट्रैक पहनूं. और उसको पता चला मैं ट्रैक पहन के बाहर आ गया, तब तक वो भाग गया और वो पीछे पीछे मुड़ के देख रहा है. तो मैं चाचा को बोल दिया कि ऐसा ऐसा सीन है. तो चाचा बोला कि किधर है, मतलब दिख रहा है. देन दिखाने तो कुछ बोल भी नहीं सकते, लाइक फक इट. बट वो इम्पैक्ट हो गया ना इतना मेरे दिमाग में कि लड़कों को लड़के नहीं छोड़ रहे हैं. Like, what is this? And that too a guy who is 70 years old. Okay, I understand you're sexually unsatisfied, but what I need to know what goes around the mind when you're doing such acts. How are you not understanding that that physical body is different than yours? Even if like spiritually, mentally, हम लोग बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि we all are one, but physically वो अलग है, उसके राइट्स अलग है, तेरे राइट्स अलग है, but तुम लोग के दिमाग में जाता क्या है? एक मेरा हुआ था ऐसा एक्सपीरियंस, मैंने बताया नहीं है किसी को, लाइक लोकल ट्रेन में हुआ था. लाइक अभी हुआ, स्कूल के टाइम की बात है, लाइक 10th और 9th की बात है. मेरे पेरेंट्स को भी पता नहीं है ये. लाइक देयर वाज, मैं ऐसे ट्रेन में था एंड अंकल ही थे, बुढ़ा आदमी था, लाइक गए था शायद. सो ये लाइक गर्दी में कैसे वो होता है, वो ऐसे इतना पास आ रहा है और पीछे साइड था ऐसे पास आ रहा है, मुझे कर क्या रहा है, धक्का लग रहा रहेगा, ठीक है. एंड मेरी गंदी आदत थी पहले कि मैं लोग कोई बाजू में बैठा तो उसके फोन में मैं झांकता था क्या कर रहा है बंदा. That's important. Entertainment. So वो मैं बैठा एंड लाइक कोइंसिडेंटली वो मेरे बाजू में आया और बैठ गया. एंड आई सी इज लाइक कि ये सेक्स वगैरह सब लड़कों वाला है. फक, तो ये कर रहा था. एंड मैं वो जो चला गया ना वो ट्रॉमा में, फक ये क्या सीन, ये करना क्या चाह रहा था. लाइक अभी जब भी ऐसा लाइक लोकल ट्रेन में क्या होता है, इतना गर्दी होता है, तो कोई अगर मेरे पीछे आ जाता है ना ऐसे, मेरा लाइक ये चालू होता है क्या कर रहा है ये, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता है. मैं पीछे पीछे ऐसे दिखे तो ऐसे आगे सर गया. This happens and if you don't know, transgender men who get into train hijras basically, they specifically are gonna touch you in your private parts. I don't know about girls का होता है कि नहीं, but लड़के लोग को हाथ लगाते ही लगाते. And people, I don't know why people just smile back. उन लोग को मस्ती लगता है यार. Yeah, they feel it's funny. Now it has turned it that way कि वो आते हैं because हमने transgenders को हमेशा मजाक में लिया है, या तो उन्हें sexually देखा है. And you think it is funny, but they are taking advantage. Yeah, exactly. It's and not okay. People are not knowing. I have been touched once. मैं चाटा लगाया था, तो वो 4-5 खड़े हो गए एक साथ ग्रुप में कि मारा क्यों. मैं बोला हाथ क्यों लगाया, मैंने परमिशन दिया आपको. तो बाद में बोलते हैं हाय तेरा ये होएगा. मैं होगा तो होगा, हाथ कैसे लगाया, आपको किसने राइट दिया. तो वो बाद में गपचुप से उतर गए, उन लोगों को पता है ये कांगावा करेगा. तो उसके बाद आई थिंक सो मैंने कभी देखा नहीं वो सिनेरियो के बाद. अगर मेरे साथ कोई ट्रैवल करता है ना, वो सेम हिजरे ने मेरे को है ना 6-7 बार, इट इज नॉट अ बैड वर्ड, अभी इंडिया में कम्युनिटी के लिए बोलते हैं ना, तो नीचे कमेंट्स आ जाएंगे कि हिजरा कैसे बोला, अरे बोलते तो मैं क्या करूं. तो सो वो ट्रांसजेंडर जो भी था, ट्रांसफॉर्मर, सॉरी Transformer. Thank God he did not say Avenger. So he has seen me again and again in the same train because मेरा ट्रैवल होता था अंधेरी साइड. तो वो बंदा लास्ट में आके बोला कि लाइक आई नो आई अंडरस्टैंड, मेरा गलती हो गया, सॉरी भाई साहब, सॉरी. समझा ना.
आगे से किसी को करने का नहीं है Hmm. आई थिंक सो कि उसने उसके बाद से करने का बंद कर दिया पूरी तरह से Hmm. they don't understand the depth of what damage they're causing. They just do it for fun. Hmm. ये पेरेंटल ट्रॉमा भी है बहुत बहुत होता है. बहुत होता है. पेरेंटल ट्रॉमा है वो ग्रोइंग अप के टाइम पे ना तुम लोग इतना ट्रॉमा सफर करते हो ना कि तुम लोग को समझ में नहीं आता कि तुम लोग क्या कर रहे हो Exactly. Everything starts from home. Also, I feel you see a lot of things happening. तुम एक situation create करके ही रख लेते हो mind में. Then you just walk according to it. कि okay, this happened. मतलब ये मेरे साथ होने वाला है वापस से. You don't see the other side of the story back then. It comes from home also. So after all this happened, how did you finally closed it off? Okay. So this entire thing happened to. I took some time. जैसे मैंने बोला 10th के बाद तो I did not go for any earrings. 2019 में I was lucky enough कि I got into this beautiful relationship. 2018 में actually it happened. 2019 में he was with me to be there कि जो भी कुछ हो रहा था he was standing right next to me. He knew everything कि जो भी मेरे साथ scenario हुआ था and quite a supportive boyfriend. He took very very well care of me and even sexually he knew okay this thing happened with her. She doesn't like few things in her life. Okay, I will not do that to her. Because of course, if something like this has happened, probably वो rape नहीं था. It was an assault. But कहीं ना कहीं back in my mind, it's still there. I don't like getting touched very easily. Even if I'm meeting someone, I don't go and give a side hug also. I take time. I'll talk to them for like 10 minutes. Maybe while saying bye, I'll hug them. If I'm hugging someone while going back home, that means I trust that person now. Hmm. Unless or until if I don't do that, I don't Yeah. trust a person. That's psychological bonding. Yeah. So it happened. It stays with me. It is with me. I have accepted it. It happened. And it is with me. And it'll be there forever. One thing that I'm going to make sure about this is that my daughter, if I have a daughter in future, I am going to tell her that this thing is not good. This thing is bad. You need to realize. See, jo hona hai, that happens. You cannot stop it. No matter how much you try, if things are going to happen in your life, if it is meant to be, it is written in your destiny, it is going to happen. But I'm just going to make sure that I deal with that in a better way now. जो मुझे वो टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला या किसी से नहीं मिला या किसी ने मुझे समझा नहीं वो मोमेंट पे, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मेरी बेटी वो फेस ना करे. और एनी गर्ल आउट देयर, इफ यू हैव बीन थ्रू समथिंग लाइक दिस, please stand up for that. Even if a guy in your class or even some random manager in your office is touching you in a certain way, jao, talk to your HR, tell them that this is not right, it is not okay. People working in corporate life ही वैसी हो गई है. People, well, even as an individual, my parents are from a very good background, both are well educated, but while I was entering corporate world, my parents had a fear कि कहीं तुझे compromise तो नहीं करना पड़ेगा कहीं. This has become a mindset now कि यार बॉस के साथ तो सोना पड़ता है तो ही जाके प्रमोशन मिलता है. This is how nasty the things have been. And like I was in corporate for 3-4 months. I've seen this happen. कि girls go for parties and like married girls, okay, and 70 to 80% of this girls are like there for promotions or some psychological thing, and they tend to flirt with the higher level bosses, male female, they don't look the gender, they just go and they चाटुगिरी जिसको बोलते हैं वो करते हैं. Absolutely. Oh my god. Back of the mind, they know that they are going to be compromised in some situation. Either it is talking में निकाल देते हैं, otherwise they're going to spread their legs, and this is going to happen. That's why I tend to not go in corporate world anymore. This is better. This is far better. Guys, please subscribe and follow. I love the core relevancy. Okay, guys. Oh, The God, reason yes. why we land in comedy section is this. It's not because गाली मत देना, like comedy podcast है हो जा. Crazy.
बिकॉज तुम लोग को भी जाएगा नहीं ना इतना, तुम लोग इतना बड़ा अगर बॉटल रम का मारोगे तो उसके बाद थोड़ा तो स्प्राइट पीना पड़ेगा ना, तो थोड़ा तो acidity हो जरूरी है, जाएगा। नहीं नहीं होता है वो पूरा रम तो नहीं। Hi Budweiser, you can sponsor us. Hi Durex, we can also promote you. कार्लसबर्ग में मामा है, बात करनी पड़ेगी। Let's go. ठीक है. So, yeah. So talking about a relationship, how it went ahead. Was it like smooth experience or like was it something where you want to shed light also? रिलेशनशिप, यस ऑफ कोर्स, उसके बिना आई गेस रहा नहीं गया मुझसे। मतलब या यू नो यू वी आर अ जनरेशन, वी कैन नॉट स्टे अलोन, वी वांट समवन, ठीक है, वो अटेंशन हमें किसी से भी मिल जाए, वी वांट दैट पर्सन इन आवर लाइफ, एंड वो अटेंशन कहीं यहाँ से वहाँ चली गई ना, थिंग्स चेंज, ठीक है। मतलब इफ आई एम डेटिंग यू, आई नीड योर होल अटेंशन, इफ यू आर नॉट गिविंग दैट अटेंशन टू मी, वी आर डन। So I started dating this guy, very good guy. We started off as friends, but मेरे अंदर जो trauma था, the things I went through or I had seen through my eyes, मैं ऐसी बंदी थी कि मुझे commitment जल्दी चाहिए, like a part where I was wrong, कि I shouldn't have asked for commitment in a month and say कि नहीं, I need a commitment that you are going to, see a future with me. I know I rushed things, but that shouldn't have scared the person. I believe that should have reassured him कि okay चलिए बंदी है ना, long run सोच रही है, ये time pass करने नहीं आई अपने साथ. So that was me playing my part. Somewhere he tried coping up with it. He was like कि यार तू बहुत जल्दी कर रही है चीज़ों के बारे में, ठीक है, थोड़ा टाइम दे. मैंने बोला ठीक है चल, we'll take it slow. We took it slow, but it did not work out. So we just rested it off. हम लोग ने बोला कि let's not continue, because if you are not ready to give me a commitment, I'm sorry, I cannot just move around and date every other guy in Kalyan Dombivli and be with everyone. So no, I cannot do this. I want a one man and I want to get married to that man. So after a few time, I called him again because, love, you go back. You go back to your exes that you shouldn't, never. Love नहीं, लवड़े लगते। वो लव का लवड़े हो क्या? So yes, I went back and I was like, you know what, maybe we'll give this another try. Maybe this time I'll understand, I'll take it slow. But yes, he was on board too. मतलब उसने बोला ठीक है चला, I understood your part. मुझे सब समझ गया है, अब ना मैं थोड़ी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दूंगा. And trust me, he had paid a lot of efforts and I could see that because साथ दे रहा था, हर चीज़ों के लिए वो था साथ, चाहे वो कुछ भी हो मेरे. 1 year this was very beautiful, the starting year, very pretty. मतलब ऐसा लग रहा था यार ये तो मैं फुल यशराज फिल्म में आ गई हूँ, मेरी शादी होगी 3-4 हजार गेस्ट्स के साथ, मस्त या फुल एक बोलते ना, 1 साल में सब इमेजिन कर लिया था. आई वॉज दैट हाँ धूम वाला अली, बच्चे यस, वो 3 Idiots में रैंचो, हाँ ठंडी हवाएं, बारिश. So वो सब हो रहा था मेरे साथ and I was very happy and I was just praying to God, यार ये बहुत अच्छा चल रहा है. फिर आता है हमारे लाइफ में ये स्टेज के पब्लिकली अनाउंस करते हैं आप, जो मैं रेडी नहीं थी. कभी कभी ऐसा होता है लड़के रेडी होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है लड़कियां रेडी होती है, कभी कभी ऐसा होता है दोनों रेडी नहीं होते हैं. एंड वन ऑफ देम इज रेडी. वो रेडी था वो मोमेंट पे एंड आई वाज नॉट. आई वाज लाइक नहीं यार, आई वांट टू टेक इट सम टाइम. थोड़े टाइम के बाद वी विल मेक इट पब्लिक एंड वी विल लेट पीपल नो कि दिस इज हैपनिंग. कैसा हो गया ना, वो टाइम पे आई लॉस्ट माय नानी एंड शी इज वेरी क्लोज टू मी. शी वाज द ओनली ह्यूमन क्लोज टू मी. आई वुड से that loss was the biggest loss of my life, ठीक है. तो वो टाइम पे he had helped my entire family to come out of it. He was there. तो यार वो फैमिली ने देख लिया था, मेरे फैमिली ने बैठे बैठे पूछ लिया कि तू कुछ सोच रहा है क्या हमारी बेटी के लिए. I was like yes. I'm not kidding. When my mom called him कि सुन तू जा रहा है घर पे, लेकिन एक बात सच बता दे कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है. And this guy crying, sobbing. मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे या आपके फैमिली से, ना आपका पैसा चाहिए, बस वो भेज दो, बस है मेरे लिए. एंड वी वर लाइक ओके.
नाउ दिस इज समथिंग आई वांटेड. मैं यहाँ तो कंफर्म हो गई ना यार, मैं मतलब खत्म ही हो गया मेरे लिए सब. सोल्ड मतलब भाई तू हो गया, चल शादी कर. रिश्ता पक्का. हाँ. एंड फिर आता है द फूड ब्लॉगिंग थिंग दैट आई स्टार्टेड ऑफ. ठीक है, कभी सोचा नहीं था एक्चुअली कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, बट माई फूड ब्लॉगिंग थिंग एक्चुअली केम अप फ्रॉम हिम एंड ही इज लाइक, यू नो व्हाट, तुम लोग बहुत फूडी फैमिली वाले हो यार, यू गाइज कैन डू समथिंग. एंड your mama is a chef, you want, I'll learn photography, you just do food styling, you cook food, I'll do the photography, we'll take this ahead, we'll create content. And we started our own page called Food Friends, जहाँ पे हम लोग दोनों का प्यारा सा लोगो, फुल मिनिमलिस्ट एंड यू नो एकदम इलस्ट्रेशंस वाला, या फुल कपल गोल्स बन रहे थे हम तभी. एंड वी स्टार्टेड आवर पेज एंड वी स्टार्टेड ऑफ दिस कॉम्पिटिशन कॉल्ड फूड हडल. ठीक है, इसमें ना वी इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, और वो जो होता है बेस्ट पिक्चर विन्स वाला कॉम्पिटिशन, बिकॉज दिस हैपेंड इन लॉकडाउन. तो ये सब हुआ. वी हैड वन एंट्री ऑफ अ गर्ल. ठीक है, वो लड़की का नाम मैं लूंगी नहीं ऑफ कोर्स. एंड वो लड़की जब आई थी ना वो कंपटीशन में, मैं तभी समझ गई ये सीन बजने वाले. एंड आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज वेरी वेरी इंट्यूटिव. ठीक है, माय इंट्यूजन्स ब्रो, माय इंट्यूजन्स. एक लड़की को पता रहता है कि क्या चल रहा है. हाँ ब्रो, मतलब बोलते ना, अगर मैं एवेंजर्स या किसी ऐसे सुपर मूवी में होती थी, आई वुड हैव बीन दैट पर्सन जिसको इंट्यूजन्स आते हैं और वो सच ही निकलता है. 100% इट्स ट्रू. मैंने तभी डिसाइड कर लिया था ये सीन कुछ बजने वाला है, ये थोड़ा हम अलग ही रखेंगे. बट लकीली तभी कुछ इतना हुआ नहीं, वो लोग ने कभी बात नहीं की. बट कैसा था, मेरी उससे बात होती रहती थी. नाउ शी वाज एन आर्टिस्ट. ओके, सो आई यूज्ड टू आस्क हर अ लॉट अबाउट यू नो वॉल पेंटिंग्स, दिस दैट, एंड इवेंचुअली आई गॉट फ्रेंड्स विथ हर. एंड अ मोमेंट लेटर शी स्टार्टेड फॉलोइंग माय गाय एंड माय गाय फॉलोड बैक. And my guy comes to me and he's like, your friend followed me. I was like, okay. मैं बोला ठीक है, fine, this is happening. Intuition पढ़ने लग गया ना bro. Back in the mind मैं अपने stories already build कर रही थी. ठीक है, कि ये लोग मिल रहे हैं मेरे बिना. ठीक है, मेरे ही कैफे में कोई तो जाके बैठे हैं जहाँ पे we eat something together. And all of that started happening in my mind. And starting phase तो बहुत, उसका कहना है कि it was very toxic. Because I was the one with a lot of insecurities. हर लड़की insecure होती है guys, हर लड़की insecure होती है. If you really want that girl in your life, you will contribute to her insecurities. You will not be like जो सोचना है सोच, मैं यही करेगा. The moment a guy says this, वो वही कर रहा है. So you help her coming out of that insecurity कि babe सुन, मैं ना busy था, I'm sorry, मैं तेरे को reply नहीं किया 2 घंटे से, but मैं busy था. आई एम नॉट सेइंग कि हर आधे घंटे में मेरे को बता तू सांस ले रहा है, तू नहा रहा है, तू क्या कर रहा है, मत बता. बट तू मुझे बता तू दिन में क्या कर रहा है, तू खाना खा रहा है ना. मेरा उतना ही क्वेश्चन था. तो ये क्यों अचानक ऐसे लगने लगा कि यार तू मेरे को कंट्रोल कर रही है, तू बहुत कंट्रोलिंग है, तू है ना बहुत डोमिनेट कर रही है मेरे को. मैंने बोला सी, आई एम नॉट डोमिनेटिंग, इट्स जस्ट कैजुअल केयर. कि तू डोंबिवली में रहता है, मैं कल्याण में रहती हूँ, वी आर लाइक 15 minutes अवे, इट्स ओके, आई कम टू योर प्लेस, यू कम टू माई प्लेस, एंड इट्स फाइन. तो है ना, ये झगड़े बढ़ने लग गए ब्रो, कि शक कर रही है. वो मेरे फ्रेंड्स तक गए, मेरे घर वालों तक गए कि आपकी बेटी शक करती है, उसको ही समझाओ, मैं तो बहुत अच्छा लड़का हूँ, मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरी सिर्फ दोस्त है. आई वाज स्टिल ओके फाइन. ये मोमेंट आता है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं. एंड एक पर्टिकुलर कैफे है हमारे यहाँ पे. वो कैफे में मेरा रिलेशन विद द ओनर्स आर सो गुड. द ओनर्स कॉल मी एंड दे लाइक, किधर है तू? मैंने बोला मैं घर पे हूँ. क्यों रे? बोलते राज किधर है? मैंने बोला oh my god, दया, ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा था, कुछ तो गड़बड़ है. कर दे. तो मैंने बोला अरे वो घर पे सोया है, उसका नाइट शिफ्ट था ना तो वो सोया है. क्या बात कर रही है? मेरे सामने बैठा है किसी बंदी के साथ. मैंने बोला फोटो भेज. बस मेरी दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड मिलने लग गए. एंड फिर भी मैंने बोला कि चल कैजुअली मिल रहे हैं. मैंने उस दिन उसको फ़ोन किया, मैंने बोला सुन ना क्या सीन था. बोलता अरे मैं देखते को सच बता के जाता तू मुझे जाने देती, तू यही शक करती ना मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ. तो मैं चला गया. The amount of manipulation, भाई
डायलॉग मैंने बोला एंड मैं भी बड़ी भोली, हाँ यार बात तो सही कर रहा है, मुझे सच बताता तो मैं कहाँ जाने देती इसे। नाम तो सुना होगा। हाँ ओह माय क्या गॉड, बंदे ने यस घुमाया है। ठीक है। और ये एक आधे बार हो गया, मेरे को बोलता है सुन उसको भी है ना कंटेंट क्रिएटर बनना है। मैंने बोला अच्छी बात है। मैंने बोला तो अपने पेज का क्या, क्योंकि मैं तभी समझ गई थी भाई अपने हाथ से ना चीजें जाने वाली है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स एंड विल बी डन। एंड इंट्यूजन से मेरे को मेरे इतने प्यार है ना ब्रो, बहुत प्यार करती हूँ मैं खुद से। The next thing I think about him is going at her place, ठीक है। मेरे को बोलता है सुन मैं ना मेरे फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहा हूँ एंड प्लीज़ मेरे को कॉल मत करना, बिकॉज कैसा है यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह है, बिकॉज पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। आई डोंट वांट टू मेंशन नेम्स बट दोज आर पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड यू कैन नॉट कॉल मी, आई विल बी आउट ऑफ रेंज, दिस इज सिक्योरिटी पर्पसेस। एंड आई वाज लाइक नहीं ये कुछ गलत हो रहा है। मैं घर पे रेस्ट करती हूँ, अराउंड 6:30 7 o'clock दिस गाय calls me and he's like hey I got free, where are you? I was like I'm at home। तो बोलते अच्छा you'll be at home only ना। मैंने बोला हाँ क्यों रे? तो बोलते नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मैं जल्दी आया नासिक से तो मैं तेरे को मिलता हूँ। मैं बोला ठीक है। I went back and I checked this girl's Instagram. She posted hey guys coming up with something new। ओ I was like okay ये इसको अचानक से कोलैबोरेशंस कहाँ से मिलने लग गए। बोला ठीक है यार, मतलब होगा शायद उसको कोई रैंडम। गाइस ट्रस्ट मी विद दिस, वो बंदी ने एक पिक्चर पोस्ट की, उसके अगले दिन मैंने ये मेरे बंदे को कॉल किया, मैंने बोला तूने खींची है, सच बता दे तूने खींची है, तू पागल है क्या रही? मैं इधर था, तेरे को कंफर्म करना है, तू मेरे दोस्त से बात कर। मैं कैसे उसके घर पे जाएगा क्या मैं फोटो वोटो खींचने के लिए? मैं कैसे फोटो खींचेगा? आई एम लाइक सुन ना, मेरे को पता है तूने खींचा है, वो जिस तरीके से कैमरा में देख रही है, उसका जो एंगल है, तूने लाइट कहाँ लगाया है, तेरा क्या एंगल है, ये भी मुझे पता है। त्याची पण बॅटरी जाणार आहे, we have to take break in like 10 minutes। ओके हाँ ये एंड ही लाइक नो मैंने नहीं किया। मैं इनसिक्योर गर्लफ्रेंड भाई, मैंने तो बंदी को मैसेज कर दिया सीधा। मैंने बोला ब्रो आई वांट टू टॉक टू यू। बोलती हाँ बोलना। मैंने बोला नाइस फोटोज, हाँ मतलब तेरा मैं रीसेंट पूरा फीड देख रही हूँ, इट्स गोइंग गुड, हाउ यू डूइंग इट? बोलती अरे आई हैव हायर्ड अ फोटोग्राफर, ही कम्स टू माई होम, ही क्लिक्स माई पिक्चर्स एंड ही गोज। आई वाज लाइक ठीक है। और तभी ना हम लोग ने फुल सेटअप लिया था, फुल लाइट्स कैमरा एकदम, बट वो हमारे पेज के लिए लिया था, जो हमारे पेज के लिए यूज होना बंद हो चुका था। एंड आई वाज लाइक ठीक है चल इसका ये हो रहा है। ऐसे ना बहुत सारे इंसिडेंट्स होते गए। एक बार क्या हुआ, सो आई गॉट माई चम्स एंड बीइंग लाइक एवरी अदर गर्ल आई हैव माई ओन टैंट्रम्स during those time। PMSing is real and you really get a lot of cravings and I was like यार मेरे को ना तू पैम्पर कर, मेरे को तू ये ला के दे, तू मेरे को वो ला के दे। ये तू चुप रहे, हर लड़की को पीरियड जाती, तू क्या नहीं है क्या? मैनेज कर ले, तू तेरा देख ले, ये सब मत कर, इतने नखरे कोई नहीं करता। The same moment I see this girl's story with a cheesecake, 1 kg cheesecake from Mervan's, that is my favorite, and she posts periods cravings satisfied। I called up my guy, तूने भेजा? पागल है क्या रे, मैं कैसे भेजेगा ये? तेरे को लग रहा है क्या मैं ये सब करेगा किसी के लिए? मैं तेरे लिए नहीं करता, उसके लिए क्या करूंगा? मैंने बोला तू कर रहा है, अभी भी सच बता दे तू कर रहा है। हर एक बार ये हुआ, कई बार उसको हैम्पर्स बना के उसने भेजा है गाइस, यू नो सैनिटरी नैपकिन्स, चॉकलेट्स, टेडी बेयर, एंड मैं यहाँ पे ना उसके अटेंशन के लिए मरती थी कि भाई बात कर ले, प्लीज बात कर ले, ठीक है। दिस नेवर हैपेंड, आई मीन मेरे लिए तो कभी उसने ये नहीं किया था। ये सब हो गया, मैं एक पॉइंट पे ऐसे आ गई कि आई लॉस्ट एवरीथिंग। मैं इसके फैमिली के ही घर पे थी, बिकॉज आवर फैमिलीज न्यू अबाउट अस एंड इट वाज वेरी ओपन, मतलब उसके घर पे पता है, मेरे घर पे पता है। दैट स्ट्रॉन्ग ऑफ अ रिलेशनशिप हैज कंप्लीटली टेकन अ यू टर्न। एंड मैं इसके फ़ोन चेक करने बैठ गई एंड उसके फ़ोन में नाम सेव करके उसने रखा था एंड आई एम लाइक ये बंदी वही है, निक नेम दिया हुआ था बट मैंने बोला ये बंदी वही है। आई
पिक अप माई फोन, आई चेक. मैंने बोला ये बंदी तो वही है. वो बंदा उठता है और मेरे को बोलता है तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा फोन चेक करने की. हाउ डू यू चेक माई फोन? This is not okay in a relationship. You know, you are mad. You have a psychological issue. You need a treatment. मैंने बोला मैंने कुछ गलत नहीं किया है. मैं वो बंदी को सुबह कॉल करती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ सुनना ब्रो, मेरे को पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड तेरे फोटो शूट्स कर रहा है, तुझे गिफ्ट्स भेज रहा है, तुम दोनों मिल रहे हो. जब वो मुझसे नहीं मिल रहा है वो तुझसे मिल रहा है, जब वो तुझसे मिल के आ रहा है वो मुझे मिल रहा है. मुझे सब पता है. तू सच बता रही है या मैं कुछ बोलूं? She's like, तू तेरे बॉयफ्रेंड से जाके पूछना वो क्या कर रहा है. ब्रो ये कहाँ से आ गई इसमें ऑडेसिटी टू आस्क मी ओनली कि मेरा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, उससे जाके पूछ. बोलती तुझे लगता है क्या उसने मेरे फोटो शूट्स किए? मैंने बोला हाँ. तो बोलती उससे ही जाके पूछना मैंने किए या नहीं. दे स्टार्टेड प्लेइंग विथ मी ओनली. मतलब मेरे दिमाग से खेल रहे हैं दोनों भी, लड़की भी और मेरा बंदा भी, जिसपे ना बहुत टाइम बाद मैंने भरोसा किया था कि ये मेरा दिल नहीं तोड़ेगा यार, मैं इसके साथ कुछ भी कर लूँ ना, कहीं मैं भी गलत हो जाऊँ तो भी मुझे माफ करेगा ये. एंड ही जस्ट डिड ऑल ऑफ दैट यार. फोटोशूट माई वॉज माई इंट्यूशन, वो उसने किया था. ही मेड एन एंटायर सीरीज फॉर हर. केक्स भेज रहा था, हैम्पर्स भेज रहा था एंड एवरीथिंग वॉज हैपनिंग. आई वॉज स्टिल फाइन. मैंने बोला चल फ्रेंड्स में भी होता होगा, और वो मैनिपुलेशन तो आता है ना, शी इज जस्ट फ्रेंड यार. आई मीन बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि गर्ल्स का अगर एक बॉय बेस्ट फ्रेंड हो सकता है तो मे बी वो लड़की का बॉय बेस्ट फ्रेंड मेरा बंदा बन रहा हो, कोशिश कर रहा हो या कुछ फ्यूचर देख रहा हो. आई वाज लाइक ठीक है चल हो गया, फाइन, इट्स फाइन. मैंने बोला राज इसके आगे तुझे जो कुछ करना है जस्ट मेक श्योर दैट यू आर जस्ट टेलिंग मी. तो इसके आगे मैंने उसको बोला कि इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस जस्ट टेल मी. मतलब आई सपोर्ट यू, मैं तेरे को मना नहीं करूंगी, बट देन इक्वली पुट एफर्ट्स इन मी बिकॉज इफ शी इज योर फ्रेंड, आई एम योर गर्लफ्रेंड. यू नीड टू कीप अ थिन लाइन बिटवीन. ठीक है, तू फ्रेंड को वो नहीं दे सकता जो तू गर्लफ्रेंड को दे रहा है एंड वाइस वर्सा. अब ना टाइम ऐसा आ गया कि वो बंदी को गिफ्ट देने के लिए मैं ही उसके साथ जा रही हूँ. आई हैव स्टार्टेड रैपिंग हर गिफ्ट्स. आई हैव स्टार्टेड प्लानिंग आउट थिंग्स फॉर हर. आई हैव स्टार्टेड सजेस्टिंग हिम प्लेसेस टू गो आउट. And this is happening. But how? Why? क्या like कौन सा ये? Because you are in love. Okay. The person who is in front of you is manipulating you in such a way that you are stuck. You are wrapped around his finger. You didn't have someone like to pull you out of it. No one. That moment, no one. Because my best friend, she was not here. She was in Pune. And I literally have inside joke. I literally don't have a lot of friends around. And तो नहीं था कोई. उसकी फैमिली भी कहीं ना कहीं ये सब देख रही थी. तो his brother used to help me a lot. He used to say me कि तू है ना गलती कर रही है मेरे भाई के साथ रह के. उसकी मम्मी भी यही बोलती थी तू गलती कर रही है मेरे बेटे के साथ रह के. वो आज तेरे साथ है, कल वो किसके साथ होगा हमें भी नहीं पता. So you didn't look it as a red flag. Why? I oversee it. Okay, cool. Red flags for me with a perspective of a therapy. Do they turn you on? I wish, but no. No. I mean, red flags turn girls on. This is not a myth. Like मुझे Somewhere. उसको सुधारना है. हाँ ये मेरे अंदर बहुत था यार. पता नहीं क्यों कि मैं उसको सुधार के कहाँ ही जा रही थी, या मैं उसको रणबीर कपूर बना रही थी वो मोमेंट पे. बट मुझे उसे सुधारना था. मैं You're joking, huh? Having Deepika Padukone moment. yeah. The first. नो बट जेन्युइनली मुझे सुधारना था. एंड आई वाज लाइक तू जो कर रहा है तू कर, आई विल बी एट पीस, मैं तेरे को हेल्प करूंगी. आई विल मेक यू कम आउट ऑफ दैट अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन व्हाटएवर यू हैव विद दैट पर्सन. हिम्मत इतनी बढ़ गई कि आई वाज वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. वो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ दोस्त मेरे दोस्त बन गए थे इवेंचुअली. ठीक है, मतलब बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे. एंड वो भी देखते थे मुझे मेरे बंदे के साथ आते जाते सब. एंड ही यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व टू. तो वो सारे दोस्त ना वी प्लान्ड एन आउटिंग. हम लोग गए घूमने. वी बुक्ड अ विला. ये मुझे बोलता है सुन ना इसको भी लेके चले क्या. इतना गट्स किधर से आता है बच्चे?
मेरे को बोलता है अरे वो फ्यूचर में ना तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कंट्रीब्यूट करेगी तो इसको ले चल तो साथ. मैंने बोला वी आर गोइंग आउट टू पार्टी बिकॉज हमने बहुत अच्छा इवेंट थ्रो किया अभी जस्ट एंड वी वांट टू एंजॉय दैट मोमेंट. उसमें उसका कंट्रीब्यूशन कोई नहीं था तो हमारा कोई रीजन नहीं है उसके साथ कहीं जाने का. बोलते नहीं चलते ना अपन टाइम पास हो जाएगा थोड़ा सा. एंड हम उसको लेके चले गाइस. यस we were tripling and she was there with us for a vacation. मेरे ही गाड़ी पे उसको बिठा के वो घूम रहा है और मैं कार में बैठी हूँ मेरे दोस्तों के साथ. एंड ये मस्त फुल बाहों में बाहें डाल के ऐसे फुल लॉन्ग ड्राइव की मजा ले रहे हैं एंड मैं कार में पीछे हूँ. एंड आई एम सीइंग दैट. आई एम लाइक ओके फाइन ठीक है अभी भी ठीक है. देयर इज अ ट्विस्ट बट वो बंदी आई थी सिर्फ एक दिन के लिए बट वी वर स्टेइंग देयर फॉर ओवरनाइट. बंदी ओवरनाइट का परमिशन लेके नहीं आई थी तो उसको वो परमिशन लेना था. किससे? उसके बॉयफ्रेंड से. Oh my god. उसका बॉयफ्रेंड है. Yes, 5 years of relationship. किससे तभी बनते जो आपने मिलते हैं ब्रो. And my guy is like full बीटी में चला गया ब्रो वो मोमेंट पे कि भाई मुझे तो लगा था ये घर पे कॉल करके परमिशन लेगी ये तो इसके बंदे को कॉल कर रही है. मैंने बोला कारमा अब आया अभी आ गया. कोमली अब बोल डैश डैश अब इसके मन में बजा रहेगा कोमलिका. फुल मैं तो स्ट्रिंग्स भी ऐसे ये बंदी अपने बंदे से परमिशन ले रही है और मेरा बंदा यहाँ वहाँ घूम रहा है कि मैं क्या करूँ अब. मैं क्या करूँ मैं ही गया था उसका. But like, I really don't understand this man. Like, क्या सीन उसके दिमाग में क्या चल रहा था? You have a girlfriend. You said a year ago that and you were crying on phone for her. भाई तुम I know तू पॉडकास्ट देखेगा. छूतिया है क्या ब्रो? इसे प्यार नहीं मिलता है क्या यार. शाहरुख भाई का नाम खराब कर दिया. देखना मुझे चाहिए था शाहरुख खान मिल गया KRK. कांड हेल्प इट. आई वाज स्टिल ओके यार. मतलब मैं सपोर्ट कर रही थी उसको वो चीज में भी. एंड पूरी रात वो उसके साथ था. मतलब दे वर सिटिंग पूल साइड पानी में डिप विप करके अपना पैर एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम एंजॉयिंग विद माय फ्रेंड्स. वी आर सिंगिंग ऑल अनूप जैन एंड वी आर क्राइंग टू द सॉन्ग्स. एंड मेरे दोस्त आके उधर है ना फुल बीटी में वो भी जा रहे हैं कि भाई हमारी दोस्त के साथ तू ये सब क्या कर रहा है हम देख रहे हैं हमारे आंखों से. So this one friend of mine, he got so pissed at him. He went and he was like, bro, वो बंदी है तेरी. तुम लोग का ब्रेकअप नहीं हुआ है. ब्रेकअप होने के बाद ये सब करता ना तो तू समझता. But she is your girlfriend right now. What are you doing? You're handling another girl. ठीक है. If a girl gets drunk, मेरा बॉयफ्रेंड अगर आज हो, if my friend is drunk, और I can happily trust him कि भाई तू उस बंदी को है ना घर पहुंचा दे सेफली बिकॉज शी इज ड्रंक. बट तू मेरे सामने अगर वो लड़की का हाथ पकड़ के फुल कमर वमर पे हाथ डाल के उसको संभाल रहा है तो आई एम सॉरी तू संभाल नहीं रहा है. तू उसका एडवांटेज ले रहा है. Not an opinion like वो उधर आना ही उसका गलत था. गलत मतलब वो सेक्सुअल इंटेंशन के साथ ही आई थी वो बंदी. एग्जैक्टली फुल ऑन. बंदी की साइड से भी सेम चीजें थी बट इवेंचुअली जो चीजें हुई इवन आई फील यू गाइज विल गो इन ट्रॉमा बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड. या तो तुम्हारा रिलेशनशिप पे से विश्वास उठ जाएगा. चलो मैं तो अभी सिंगल रहने वाला 4-5 साल और फुल करियर पे फोकस. एंड बंदी ने फुल परमिशन ले लिया उसके बंदे से एंड उसका बंदा भी बोलता है ठीक है बेटा तू रह ले. वो बेचारा फुल ट्रस्ट से वहां पे बैठा है कि मेरी बंदी तो कुछ नहीं करेगी और मैं फुल ट्रस्ट से यहाँ पे बैठी हूँ कि एज अ फ्रेंड वो उसके साथ है. सिर्फ एज अ फ्रेंड वो उसका हाथ पकड़ रहा है. सिर्फ एज अ फ्रेंड वो उसको संभाल रहा है. फाइन. सुबह उठते हैं ये लोग. दे लीव अराउंड 6:30 विदाउट टेलिंग मी दैट दे आर लीविंग. एंड बोलता है मेरे को सिर्फ बिकॉज आई वाज ड्रंक सो मेरे को सिर्फ सुबह एक आवाज आई थी ये बोलने की कि सुन उससे घर पे जल्दी पहुंचना है तो मैं निकल रहा हूँ. और वो निकल जाता है. वी रीच बैक एंड पेट्रोल भरने के टाइम पे ही कम्स टू माई कार नेक्स्ट टू मी. ही इज लाइक सुन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई. आई वांट टू टॉक टू यू बट आई प्रॉमिस यू आई विल मेक एवरीथिंग राइट. मैंने बोला
तूने कुछ किया क्या, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे बीच? देखो इंट्यूशन आ गया है. हाँ. तो बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, बट मेरे को तेरे से बात करनी है, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ. मैंने बोला ठीक है. नाउ वी सिट हियर टू कन्फ्रंट एंड ही इज लाइक तू हमेशा मुझे छेड़ती थी ना कि तू उसके बारे में कुछ फील करता है. तू बार बार ये ट्रिगर करती थी कि तुम दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है. देख अब फीलिंग्स आ गई मुझे. बोला भाई मेरी बाजी मेरे ऊपर पलट दी इसने. मेरी बिल्ली मेरे पे मैं हूँ. Full on, and he's like, just because you said that I am in love with मैं her, आ गया. now I am in love with her. ऐसा नहीं रहता है. ये क्या है? Oh. So now he confessed कि वो प्यार करता है, and I was like, ठीक है चलेगा, let's just give some time. You figure out what you want. If you love her, you love her, and if you love me, you love me. So he's like, no, I love both of you. I love her. I love you too. This is, sorry to interrupt, but this is kind of poly. Is he polyamorous or any poly? I don't think so. He even knows like meaning of poly, to be very honest. And if he knows कि ऐसा भी कोई situation होता है, relationship होता है, So he would have gone with it. yeah, he would have gone with it. Where I would have been okay with him and she would have been okay. But my point lies over here कि वो बंदी का भी बंदा है. So वो poly हो गया. actually. हाँ. So how do you want to like go ahead with this? So there is, being a psychologist, there is a few cases which I've seen. Mm-hmm. So in polyamorous and any kind of poly relationships, what happens is you need an acceptation from all the parties which you are in. You need to get into a certain situation where everyone is happy and it doesn't get wild over the period of time. So you need the sensibility and criteria for expecting and accepting things Mm-hmm. in a different point of view. But यहाँ पे the guy is tending towards something which is known as confusion, Exactly. and he is not ready to accept any situation. Exactly. So he is really not sure what to do with both the females he has. In his life. So that's where things start getting fucked up. Yes, absolutely. And Wait. वो वायर ऐसा ही कर दो. कौन सा? Just Cool. बराबर है दोन्ही. नहीं, स्टिल वो नंतर लूज होते हैं, नहीं पड़ते. ठीक है. Okay. So ये पॉइंट तक भी ठीक था यार. मतलब मैंने उसको बोला देख few months passed by and मैंने बोला चल ठीक है, you have your own feelings and I tried not to interfere कि ठीक है तेरा जो है you sort it out. But he had given me a assurance कि सुन this is for time being, और explanation भी like ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें देख के ना अच्छी लगती है, but for a fact हम वो कभी हमारे लाइफ में पा नहीं सकते. तो वो लड़की है मेरे लाइफ में. So he told you this. Yeah, he told me this thing. He took me out on a good dinner, nice candlelight dinner, and जहाँ पे a couple should have a romantic talk, वहाँ पे we were having this talk where he was saying कि वो मुझे पसंद है, लेकिन मैं उसको ना कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा. तुला शिव्या पडणार आहे. तेरे को गाली पडने वाली. क्या टाइम हो रहे हैं ये. तेरे को गाली पडने वाली ऑडियंस से. And I was like, okay, ठीक है, मैं अभी भी नहीं समझ रही हूँ. And मैं उसको बोला सुन तू प्यार करता है ना उससे? तो बोलता है हाँ, बट तू एक काम कर, तू मुझे ना सिर्फ 1 महीने का टाइम दे, मैं उसको अभी छोड़ दूंगा एंड देन विल बी फाइन. मैंने बोला ठीक है 1 महीने का टाइम ले ले. आई कॉल्ड माय बेस्ट फ्रेंड, मैंने बोला तू इधर आ. तो वो आई अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंड वी वर हैविंग दिस गुड डिनर. एंड आई फक्त कुकर लावू नको. 5-10 मिनिटासाठी कुकर लावू नको. झालं 15-20 झालं की सांगू. हाँ. या सो मेरी बेस्ट फ्रेंड आती है एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी वो सेम सिचुएशन समझाता है कि यू नो व्हाट ऐसा ऐसा है, मैं छोड़ दूंगा, मेरे को सिर्फ 1 महीने का टाइम दे. मैंने बोला नहीं तू अभी छोड़ेगा उसको. एंड ही इज लाइक हाँ ठीक है, आई प्रॉमिस यू मैं उसको अभी छोड़ रहा हूँ. मैंने बोला ठीक है चल मेरे घर पे, बिकॉज मैं ना वो बंदी को कॉल करने लग गई अब गुस्से में कि भाई तेरे को अक्ल नहीं है क्या. एंड इसके पहले मैं वो बंदी से ना पर्सनली मिल के आई थी कि ब्रो सुनना वो बंदा मेरा है. आई अंडरस्टैंड मैंने कहीं ना कहीं उसको कम अटेंशन दी एंड प्रोबेबली इफ ही इज इनटू लुक्स यू लुक बेटर देन मी और समथिंग लाइक दैट. आई प्लीडेड दैट गर्ल दैट मोमेंट. आई वाज लाइक प्लीज लीव हिम. इफ यू डोंट इंटेंड टू डू समथिंग गुड, please don't spoil it also, because I know this is not love. Is it like they're together now?
I hope not. Right. Because you have no clue no, I what's have no going on. clue. I Nice. have WhatsApp no पूरा clue contact what's नहीं going पता. on because for a long time I stalked the girl, I stalked my guy and all of that, but I stopped doing that because it was getting very toxic for me also, just to know के आज क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे हैं, साथ है क्या, नहीं है क्या. So I currently don't know what is going on. That's nice. It's nice. Yeah. Okay. So moving on, what happened next? So that night we went home and we were staying at my place. Me, my best friend, and my guy, and my mom. She was waiting for us क्योंकि ये सब तेरे घर पे हो ये सब मेरे घर पे हो रहा है. So it's 1:30 in the night and my mom is waiting for us and she's saying कि तुम लोग को इतना लेट क्यों हो रहा है, and we look very drunk all of us because हम लोग सच में पिए हुए थे वो दिन. And my mom is like, all okay ना? मैंने बोला हाँ मम्मा, you go and sleep, everything is fine. And ना हम लोग हॉल में थे तीनों because we knew कि हमको discussions करने हैं, we cannot do anything, we cannot go in a room and sit and talk and all of that. So me, my best friend and this guy, we sit and he's like मेरे को थोड़ा टाइम दे, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं इससे बात करता हूँ, give me like 10 minutes, I'll end everything and I'll come back to you and I'll be your man. I was like ठीक है. मैंने बोला it's 1:30 in the night, 10 minutes क्या होता है, चल 2 बजे तक भी बात कर ले. तो मैंने ये बोल दिया. तो वो बात कर रहा है. अब है ना रात के 3 बज गए गाइस, बंदा घर पे वापस नहीं आया है. I lose my patience, I go down and from far away I could hear this guy singing एक प्यार का नगमा है जिंदगी, I don't remember the song also. तेरी मेरी कहानी है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खो के पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है. मतलब they are explaining this to each other कि okay, I might be going but don't worry, I was meant to come here. And I took that phone and I started abusing that girl. I was like भाई अब पानी सर के ऊपर गया, तू भाड़ में जा. And I called her what not. This man, he takes the phone, holds my head, slaps me once. He's like, ये सिखाया तेरे माँ बाप ने. And I was fine. I was still fine. ठीक है, I had one slap. He hits me again. He slapped me 5 times that night, saying this is what your parents have taught you, to abuse a girl. I was like, that girl is being bitch. This is what his तेरे को बजा देना चाहिए था. क्यों तेरे को अक्ल है क्या? तू लड़की को हाथ कैसे लगाया? बजा देना चाहिए तो उद्याशी दात पाडून टाकायचे होते तरी. बाप. And वो moment पे I am pleading him कि Raj, don't do this. I mean, this is very bad. This is how ugly we have got because of that one girl. She's affecting us. एक ही काम करना है तेको. You just have to block her, remove her out of our lives, and we'll be happy. I promise you. I'll forgive you for everything. I don't even need an apology at this moment. बस उसको तेरे life से निकाल. I'll be yours. I'll never even mention. Has your therapist told you might have anxiety attachment issues? Of course. I have abandonment issues. I have anxiety attachment issues. issues. All of it. I have all of it. There are days where even if I'm meeting a person once in my life, that same night I'll text that person, I know you're going to leave me. And that feeling is never good. Because that is a period जहाँ पे तुम realize करते हो, maybe you can end up alone this way. Maybe the real people who want to stay with you, you're pushing them away. And that has somewhere made me feel, yeah, I have lost a lot of friends. I have lost a bunch of friends. That is in a way good, but not so good that you might think that a person who is right also now, you might have trust issues and push him away because of one situation which happened. So That's it. did this continue anywhere or like it ended just there? Oh no, it did. So वो रात को I almost fell on the ground. I remember him pulling my hair and taking me कि चल मैं आज तेरे मम्मी पापा को बताता हूँ कि कैसी लड़की है तू.
तेरे को तमाशे करना है ना, मैं तेरे को तमाशे बताता हूँ, मेरे घर वालों को भी बुलाता हूँ, तेरे घर वालों को भी बिठा, और मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम क्या उखाड़ लोगे, करता हूँ मैं उससे प्यार. एंड दिस एंटायर फुटेज गॉट रिकॉर्डेड इन माई बिल्डिंग का कैमरा गाइस. दिस वॉज सीन by people. CCTV. Yes, CCTV footage पूरा का पूरा was seen. We had to make sure के we deleted that because I did not want my dad to be included in this. He would have ripped his soul. He would have killed that guy. Anyone would have. Because there is no authority to to touch you, like touch you. Even like if he's your boyfriend, he can't just slap you. बाल Violence, मारा, बाल खींचा and यार. you were unconscious. That is not. I'm not. I also start like me. मैं खुद ये पोजीशन में नहीं है कि मैं बोल सकता कुछ गलत है, but जो है गलत है. बहुत गलत है. ये गलत है. और जो लोग अपने बंदियों को मारते हैं ना, मैंने बहुत बार I have stopped my vehicle, I have got down from buses just to slap back the guy because लड़की को मैं मार सकते, लड़की कुछ बोल नहीं सकते. You can get okay, you can hold hand tightly और तुम लोग उसको pull back करके बता सकते हो, but एक उठा के मारना is गलत. I really fuck bro. वो रात हम लोग घर पे वापस गए एंड माई फ्रेंड आई टोल्ड हर के यू नो व्हाट प्रियम ये सब हो रहा है. मैं बार बार ना उससे फ़ोन छीन रही थी वो बंदी से बात करने के लिए. इसने ना मेरा हाथ मोड़ दिया मेरी फ्रेंड के सामने. माई फ्रेंड क्राइड इनटू टीयर्स. हाथ जोड़ के उसने वो बंदे को बोला है कि तू उसको छोड़ दे ब्रो, तेरे से नहीं हैंडल हो रहा है ना, तू छोड़ दे, हम संभाल लेंगे, बट जस्ट गो आउट ऑफ हर लाइफ. एंड दिस गाय played a very good role by crying, just crying कि मैं कभी किसी लड़की पे हाथ नहीं उठा सकता, मैं मराठा हूँ, मैं किसी लड़की को हर्ट नहीं कर सकता. किधर गया वो, किधर है गया वो, निकालो यार. I cannot do this. This is against me. मराठ्यांच्या नावावरती कलंक आहेस तू. And मतलब you are being the same person और तू लड़की को क्यों मार रहा है? क्योंकि उसने तुझे पकड़ा किसी और के साथ. वही तो. क्या रिलेशन है ये चीज का? I was still such kind of a person ना जिसने उसको माफ कर दिया ब्रो वो पॉइंट पे कि ठीक है. You have a big heart. You want it. yeah, वो दिखता है. You are a precious person here, not him. I was still okay with it. I was like ठीक है. Probably at a point अब सुधर जाएगा तू कहीं ना कहीं. I started going at his place again and I started you know making things normal. चुप चुप के उससे बात करता था रात भर. They used to WhatsApp call each other ताकि मैं उसको कॉल करूँ तो busy ना आए. And जब मुझे मालूम पड़ा कि WhatsApp कॉल पे you know we get that calling ringing वाला difference. They started video calling on Instagram. तो उसमें कोई notification ही नहीं आता. तो मैं यहाँ तक भी ठीक थी. मैंने बोला कोई बात नहीं. Then गणपति आया and we went out. We मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं and day one of our relationship हम वो इच्छापूर्ति गणपति we go there every year and like every year हम उस year में भी गए and we got very late. I lost my phone that day and वापस आने के बाद I was like कि चल we'll stay somewhere and we thought कि this is a good time to you know mend everything together. सब साथ में लाते हैं, अब सब ठीक करते हैं. I booked a nice room, sea view and all at Trident and I was like चल let's stay here. Hoping, expecting कि ये वो बंदी की बात नहीं करेगा वहाँ पे. Turns out he says me कि तू एक काम करना. We enter the room, we check in and all and मेरे को बोलता है कि एक काम कर, can you just hide in the washroom because I want to video call this girl and show her the room and show her the view. काय को पागल है कि ये बंदा? Because she's my friend, no. She's my friend. So I want to show her this room. मैं चली गई बाथरूम में, मैं छुप गई. मैंने बोला अगर उसने पूछा कि बाथरूम दिखा, बाथरूम क्यों नहीं दिखाया, बोलते तो तू बाहर आ जाना ना. I was like ओके. बोलता है देख मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ तुझे बताऊँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ वो उसके मुंह से बोले दैट शी लाइक्स मी एंड आई डोंट लाइक हर. आई एम बीइंग अ फेथफुल गाय टू यू बट मैं तेरे को प्रूव करके दिखाऊंगा दैट शी लव्स मी.
अलग ही क्लाउन बना रहे हैं Do you understand the kind of manipulation this वही। guy was doing? This- अलग लेवल का सीन चाले। मैं होता if I were in your place ना, मैं बोलता निकल यहाँ से, रूम मेरा है, भाग यहाँ से, सीधा सीधा उठा भगा देता उसको ट्राइडेंट से। मैं I mean, Trident के room सस्ते नहीं होते guys. I हाँ, played वही तो, वही। bloody what? And that Yeah. moment I was not even earning. I mean, वही I was the guy. I would have been like, fuck, how to make this hot right now? How to spice this up, bro? Chance है, bro. क्या करूँ? and Okay, she came 4 times. Yes, yes, yes. That would be my level. कि, oh shit, bro, ये क्या चूतिया आदमी. हाँ. कैसे क्या? काय? वैसे कैसे लोग That's the reason why I don't know. I mean, I take मैं मर्दों की साइड लेता है, बट सारे मर्द भी कुछ नहीं खास होते। नहीं है ब्रो। Yeah. उनका वो बचपना जाता नहीं है, एक पॉइंट तक ही रहता है। दैट इज लाइक ये खिलौना भी चाहिए, वो खिलौना हाँ भी ना। चाहिए, दोनों गॉड and the things don't end here, by the way. Room तो दिखा लिया. अब मुझे लगा कि चलो अब things will be good. And he says me कि तू एक काम कर, तू है ना अंदर बैठे बैठे टाइम पास मत कर, you just make a hot water bath, nice, and I'll come and we'll have some good time. And I was like, okay, cool, maybe things are okay, fine, ठीक है, ये उसको फोन भले ही कर रहा है, but ठीक है, बंदा तो मेरा है ना. At the end of the day, he's eating दाल चावल. I'm fine. And यू नो दाल चावल, हाँ. एक्सक्यूज मी। हाँ, biryani. So I was like, ठीक है, चल. So he cuts the call. He spends time with me. He has his moment. He's done without thinking कि मेरे को क्या चाहिए, ठीक है? And he walks out. He's like, go clean yourself और तू बाहर आ जा. मैंने बोला ठीक है, asshole. मैंने बोला bro, ठीक है. I mean, automatic था सब इधर. And जेट स्प्रे इसको बता नहीं देगा। वो यूज करना पड़ा at the end of the time मेरे को. okay. And I came out and he's like, shh. I was like, what? She's on the call. I was like, तो अभी रख देना bro, सोना है. Let's spend some time together. Wait no, मैं उसके मुंह से सब निकलवाता हूँ. देख आज सब निकलवाऊंगा उसके मुंह से. I was like, ठीक है. I am sleeping next to this guy. He's here talking to her. It's 12, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30. These guys are just talking. And that girl is mentioning to a point कि यार ये रक्षंदा के वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये बीच में नहीं होती तो कितना इजी होता था सब. उसको कैसे समझाएगा तू ये सब? And this one is saying, अरे मैं समझा दूंगा ना. मतलब he is playing in front of me, हाँ, कि देख 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 कैसे बोल रही है तेरे बारे में. And I'm like, okay, समुंदर देख के मुझे तेरी याद आ रही है. I feel like singing this song. And they're singing song for each other. And I'm there listening to entire thing, entire night. Till 7:30 in the morning, it did not stop. Silence, bro. यार, fuck, this level of manipulation is just like Pakistan trying to manipulate India for something. यार भाई वो उधर मत तुम करके करो. I am like, bro, मतलब तू क्या कर रहा है? I mean, I am right in front of you. He's not even like faking it. No, He's just doing it. yeah, he's doing it. And I'm okay. I'm still accepting. Acceptance मेरे life में इतना था कि तू कुछ भी कर ले भाई, मैं सब सुन रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ, and I'm fine. टाइम में अगेन ना वो चीज बढ़ती गई ब्रो. एंड गिफ्टिंग हर, डूइंग थिंग्स फॉर हर. अब मैं सच में मतलब है ना, आई हैव बीन देयर जहाँ पे मैं उसकी गिफ्ट का ऑर्डर खुद प्लेस कर रही हूँ. क्या आई वांट दिस कस्टमाइज्ड So इलस्ट्रेशन. you were brainwashed Completely. कि you were like just physically a robot for this Yes. situation. Yes, completely. Because this question was asked to him ke, bro, if you love her, don't you think you are cheating on her also by being with me? दोनों साइड से चीट कर रहा है ना ब्रो, तो एक साइड सिलेक्ट कर ले तू. मतलब नो, फिजिकली आई लाइक यू. Physically कैसे? अरे यार कैसे? क्या है
I have a different connection with you physically, but Manda Buddhi. He was, sorry to say, but he was just addicted. He might be addicted with the sexual nature of you being there. He needs therapy. Hardcore. Like I just hope he's taking one right now. If he is he's not, not. I hope he He's a does. Maratha. Sorry. ऐसा नहीं बोलेगा. But this is what people do. Like I am this, so I won't take this. I'm not blaming a caste or anything. लोग करते हैं और मैंने देखा है. They belong to a community. They're like हम लोग की community में ये नहीं किया जाता है. But you don't need it as a community. You need it as a person. You need to know that manipulate. I'm directly talking to you. मैं मालूम है तू देखेगा ये. मैं तेरे से directly बोलता है. तू नहीं छूतिया पहुंचा है. तो मैं पहुंचा दूंगा. तू tag direct तेरे को tag. नहीं, वो जैसे मैं टैग डालूंगा ना हैशटैग पहुंच जाएगा. नहीं पहुंचा तो भी पहुंचेगा. You really lost something which you were like obsessed of. Now I think so there will be a time where you might need this thing. You will be standing in her position soon. Correct. I hope you do. मैं I hope you ये do. ले बजा दिया माचुदा. I mean, I will never ever wish anything bad for him yet. I really See मैं कब से वही वो देख रहा है यार बंदी कितनी सही है like I would really still feel इसको ऐसी गर्लफ्रेंड मिल गई ना ये रो like, देगा. हो गया बस हो गया बोलेगा मैं पैक कर रही हो गया बस मैं एडिटर को हो देखता हूँ. गया मैं कुछ तो सेटल हो जाएगा एक जॉब पकड़ के ठीक है चलो फिर वो बोले नहीं तो प्यार करना जो माँ है. Oh my god. Oh my god. I hate that song, guys. I mean, I can't hear it. You will abhi. get a different perspective now. I bless you with that. Oh my god. But yeah, moving on. So, things didn't change even after the Trident incident. Again, I land up at his place and I'm sleeping next to him. We made out and everything. Obviously, मतलब वो sex वेक्स तक हम पहुंच ही नहीं रहे थे because I felt shit. Emotionally, yeah. Emotionally, if I'm not connecting with you, I cannot do anything Yeah. physically. You kind of demi. Demi, yeah, call me that. He made out with me, and the next moment he gets her call, 1:30 in the night, and she wants to talk to him. Why? Because she's doing this doing some kind of a project, and she's like, please मेरे से रात भर बात करेगा क्या? Because मुझे नींद आ जाएगी वरना. And ये ना किचन में जाके बात कर रहा है. मैंने बोला मेरे को बोलता है चल मैं 10 मिनट में आता हूँ. मैं फिर भी मैंने बोला चल ठीक है 10 मिनट ले तो 10 मिनट का आधा घंटा हो गया and I was okay. आधे घंटे बाद I went out, किचन में गई एंड हाँ रुक 5 मिनट में 5 मिनट करके वहाँ पे भी टाइम हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. अब मैंने ना फ़ोन छीना वापस. दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम स्नैचिंग phone from him and he hits me with his leg on my stomach. And so bad that I fell on the ground. Yeah, bro. Did not even come to pick me up, guys. He was so much involved in that phone call because they were discussing about sex. Like, what if we had sex? यार क्या चालू है ये I have no comments for this, but like, I just want to know now. I don't want to make you cry, but I just want to know how this ended. My best friend, she helped me through because she was that one point of contact who also got manipulated because even she started hiding things from me. वो उसको सब सच बता के जाता था कि मैं ये बंदी के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, इसको बताना मत. एंड मेरी बंदी छुपाती थी मुझसे ताकि मुझे हर्ट ना हो. अ पॉइंट वेयर शी रियलाइज कि ओके दिस इज नॉट हैपनिंग. शी प्लेड द कार्ड एंड बंदी के बॉयफ्रेंड को जाके सब बता दिया. So, thank you. धन्यवाद. Team किसे says धन्यवाद to you. You are a great person. Helping such people out of situations is a blessing. I hope the therapy and you is like working on you and everything. It is healing you up, and I really hope you have a greater future now.
I know you were at a point of break. That's why I was cracking jokes. I was almost there. I was just about to cry, and you guys, just switched it for me. Yeah. So that's where we played our cards. We didn't want anyone to cry here because everything should be like happy at the end. And I feel कि ये सबके साथ होना चाहिए. If you guys are into a problem, please find a person to talk to. Come out of that relationship. अगर एक बंदा तुम्हारे या फिर बंदी तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, मत रहो. इमोशनली एक्सपेक्टेशन रखते हो ठीक है, बट अगर एक्सपेक्टेशंस को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, अगर तुम्हारे लाइफ को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, तो मत रहो. Never. वो बंदा वो बंदी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल या फिर सेक्सुअल इंटरेक्शन के लिए ही है. बस यहाँ पे दैट गाय, उसका सेल्फ एस्टीम इश्यूज है, उसका वैलिडेशन इशू है, उसको प्रायोरिटी समझ में नहीं आ रही, उसके दिमाग में कुछ क्लियरिटी नहीं है. तो व्हेन देयर इज नो क्लियरिटी देयर इज नो वैल्यू. Absolutely. तो आई फील कि तुम लोग प्लीज रिलेशनशिप में आने से पहले थोड़ा टाइम वेट करो. मैं हमेशा यही बोलता है. मैंने It is बताया वो important. मेरा It is है वो important. like it is important टाइम लो दूसरे बंदे को या पर्सन को जानने के लिए. एटलीस्ट 6-7 महीने लगाओ. 6-7 महीने लगाओ, बचपन से नहीं. बट लाइक बचपन से लोग बचपन से वैलिडेशन ढूंढते हैं, बट मिलता नहीं. 4 साल हो जाते हैं. Ouch. ये मैं काट जस्ट किडिंग. बट लाइक नो, मेरा भी कटा है, ऐसा नहीं कि नहीं. मैं भी थोड़ा हरी करता था, अभी हरी नहीं कर रहा है. मैंने ये सीखा है कि 1 साल 2 साल जितना भी लेने का उतना ले लो. इफ यू वांट टू डू अदर थिंग्स जस्ट टेल कि मेरे को ये चाहिए. इफ यू वांट सेक्स टेल देम सेक्स चाहिए. बट रिलेशनशिप में पढ़ो तभी जब तैयार हो मेंटली. Exactly. Otherwise it's gonna fuck up. And any given time, if a guy raises hand on you, even for once, don't be me. Please take a stand. Tell him fuck off. I don't need you in my life anymore. And khatam karo. Don't even go back. Because once you go back, you are killing yourself. You won't be ever be able to look in the mirror and say, okay, I'm proud of myself. वो मार खाने के बाद तो कभी नहीं यार. If हमारे माँ बाप भी जब हमें मारते हैं ना, उसके पीछे प्यार होता है. इनके पीछे प्यार नहीं होता. In this case it was clear कि चूतिया बना रहा है और like कुछ नहीं है. But yeah, if a person raises hand, girl or a guy, even a transformer, Yes. raises a hand on you, so just move out. Transgender. Move out. एलजीबीटी पर बोलूं टाइम NDTV? Just move out of the relationship. I'm sorry, हम लोग jokes कर रहे हैं. Okay, we don't want any more chills here. But yeah. यहाँ एंडिंग तक बहुत कम लोग रहेंगे. But रहते हैं. ओजीज रहते हैं, वो लोग समझते हैं. Okay, cool. I think so. We have spoken a lot about it. Yeah. You have anything to share at the end? Not really, but I feel I have this one perspective about love now. It is also mentioned in Bhagavad Gita. Lord Krishna always says this, that if you are falling in love, make sure if you are loving someone, keep it apart from expectations. Talk to them without any intentions. And make sure that is a true spirit of love. The moment you do that, I feel you have reached a point कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ. The moment you feel if that person is crying, I am crying too, you love that person for real. Don't fake love. Unconditional love. Unconditional love. Always. I mean, लोग बोलते हैं ये one sided love. हाँ ये क्या होता है, ऐसे नहीं होता है. But then if you are expecting a person to be just like you, that won't be there. That person will be different, you will be different, but you will have to come to a point where you complement each other, and without that it's not going to happen. Wow, nice. Anyways, thank you for watching. Yes. And I hope you're watching everywhere. Spotify, Apple Music पे हम लोग आने वाले जल्दी. थोड़ा काम चालू है. But YouTube पे, Instagram पे जहाँ पे देख रहे हो, thank you. We are on every platform that is available on audios, and you can even search on SoundCloud. कुछ भी बोल दो, हम लोग का नाम डालो, किससे पहुंच जाएंगे.
But thank you. Until and unless then, मैं उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ. शब्बा केर बोलने का है. You शब्बा केर whatever it is. Shabba ke, take care, whatever it is. Peace out. guys. Oh God. Chalo, bye. Bye bye bye. If I'm